فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ویور، حکیم شہباز بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام گھر پنسار آپ کے لیے اور حکیم شہباز بٹ بھی آپ کے لیے۔ ویور، آج کے اس پروگرام میں آپ کو بادیاں سونف، جسے ہم فارسی میں بادیاں کہتے ہیں، اردو میں سونف کہتے ہیں، سونف کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویور، سونف زیادہ تر گھروں میں زردہ یا کوئی اور ایسی میٹھی چیز بنے تو اس میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا پھر پرانے بزرگ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ میں درد یا خوشبو کے لیے چباتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے کیا فوائد ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ ویور، آئیے ایک تصویر کی مدد سے آپ کو یہ بات واضح کی جائے کہ اس کے اندر اور کیا ہے، اور تصویر کے بعد آپ کو اس کی مزید تفصیل بتائی جائے گی۔ ویور، پروگرام کو شوق سے دیکھیں، نوٹ کریں، آزمائیں اور پھر ہمیں بتلائیں۔ جی ویور، سونف میں کیا ہے؟ 9% سے 14% تیل اور معدہ کو طاقت دینے والے بے شمار عنصر موجود ہیں۔ تو ویور، بے شمار عنصر کون سے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور معدہ اور جگر کو طاقت کیسے ملتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلیے ویور، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ویور، تصویر میں آپ نے سونف کو دیکھا، یقیناً پسند آئی ہوگی، آپ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن جو میں آج بتانے چلا ہوں وہ آپ کو نہیں پتہ۔ ویور، اس کا استعمال سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے روٹی پکانے والے توے پہ اگر 1 کپ سونف بریاں کر لیں، براؤن کر لیں یا ہلکا سا بھون لیں تو اسے گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ اب معدے میں درد، وامٹ ہونا یا متلی ہونا، خدا نخواستہ بینائی کا گرنا، باڈی گلینڈ، فیٹ گلینڈ کہتے ہیں جسے ہم، چکنائی کی گلٹیاں ہونا، معدے کے اندر کوئی فنگس وغیرہ لگ جانا، اور ویور، جلد کی بے شمار بیماریوں کے لیے، امراض کے لیے سونف اپنی مثال آپ ہے۔ چلیے گرام معدے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جسے آپ اپھارا بھی کہتے ہیں اور معدے کی سوجن یا ورم بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے آدھا چمچ سونف صبح دوپہر شام کھا لینے کی کافی ہے، اور اگر آپ فوراً آرام چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، تو 1 چمچ ٹی سپون سونف 1 گلاس پانی میں جوش دیں، پون گلاس رہ جانے پر ململ کے کپڑے میں پون لیں۔ ویور، اسے 3 ڈوز میں تقسیم کر دیں، آدھا کپ صبح دوپہر شام ناشتے کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ، اور آپ کو نرم غذا پر گزارا کرنا ہوگا، دلیا، کسٹرڈ، ساگودانہ اور دودھ، ڈبل روٹی، سافٹ فوڈ پہ جانا ہوگا، لیکن غذا آپ وقفہ سے تھوڑا تھوڑا کھانے میں لیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ویور، جن لوگوں کے جسم میں چکنائی کی گلٹیاں ہیں اور آپ پکڑ کے دیکھتے ہیں روزانہ، یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں تو یہ سب سے آسان آپ کے گھر میں موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں نے ہر پروگرام میں یہ تاکید کی ہے کہ آپ پلیز دن میں 1 بار اپنے گھر کے پنسار کو ضرور دیکھیں، اور دن میں کوئی 1 مرتبہ کسی ایک فرد کو کہہ کے یہ ضرور پوچھیں کہ آپ نے آج کوئی تجربہ کیا، اس میں آپ کو کیا کچھ ملے گا یہ مجھے پتہ ہے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو میرا خیال ہے پتہ چلنے کے بعد فائدہ بہت ہوگا۔ اب میں بتا رہا تھا فیٹ گلینڈ کے بارے میں، یہ ضرورت سے زیادہ چکنائی جسم میں اکٹھی ہو کے چھوٹے چھوٹے گلینڈ بنا دیتی ہے، اور کئی لوگوں کو تو جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اتنے بڑے بڑے گلینڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کا وزن تقریباً 200 گرام سے 400-500 گرامز تک ہوتا ہے۔ تو آپ کائنڈلی ابھی سے اپنا اس کا سدباب کریں۔ جیسے تھائرائڈ گلینڈ بھی ہوتا ہے، اس کی بھی اصلاح کرنے کے لیے سونف کا استعمال کریں۔ دیکھیں
सौंफ मैदे में जाके हल होती है, शेक होने के बाद टाइम लेती है, लेकिन अगर आप सौंफ का पानी बना लेते हैं या सौंफ का अरक ले लेते हैं तो वो फ़ौरन काम करता है। इसी तरह से अगर आप 1 गिलास पानी में 4 चम्मच सौंफ डाल के जोश दें और 6 चम्मच उसमें चीनी डाल लें, जब वो शरबत की तरह गाढ़ा हो जाए तो उसे महफूज कर लें। शीशे की बोतल में महफूज करके रखें। मैदे के लिए भी इस्तेमाल करें, जिगर में दर्द के लिए भी, नींद ना आने के लिए भी इस्तेमाल करें, और अगर घर में कोई छोटा मुन्ना बच्चा हो और वो दांत निकाल रहा हो, दांत निकालने की दर्द बड़ी अजीब होती है बच्चों में, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सब्र दे रखा होता है, तो वीवर उसके गम्स पे जो मसूड़े हैं जहाँ से वो दांत ग्रो कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वहाँ पे वो शरबत थोड़ा सा लगा दे। बच्चा ज़बान भी रगड़ेगा, गम्स को भी रगड़ेगा, जैसे टीथरिंग लेके चबाता है बच्चा, इस तरह से। लेकिन जब वो सौंफ वाला शरबत अंदर जाएगा तो वो डबल काम करेगा। एक तो गम्स को खोल देगा, मैदे के ज़रिए मसूड़ों में ताकत पहुंचेगी और वो सेहतयाब हो जाएगा। तो वीवर, जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या बड़ों को है, बच्चों के लिए यही 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम, बड़ों के लिए 1 से 2 टेबलस्पून सुबह दोपहर शाम फास्टिंग में नाश्ते खाने से पहले। लेकिन काइंडली ये बात याद रहे कि ये शरबत लेने के बाद आधा गिलास पानी नीम गर्म लाजमन पिया जाए। बच्चों को बेशक भले आप आधा गिलास दे दें, लेकिन बड़ों को 1 गिलास पानी लाजमन पीना चाहिए, इससे पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और वीवर, वो लोग जिन्हें खट्टी डकारें आती हैं और कभी कभार डकार लेते वक्त आवाज़ के साथ हलक से एक रतूबत या तेल या कड़वा सा पानी आता है जो बिल्कुल जहर की मानिंद होता है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको कोई दवाई नहीं चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि जो घर में पंसार पड़ा हुआ है, जिसे मैं घर पंसार कहता हूँ, उसमें से कौन सी चीज़ आपने यूज़ करनी है। तो व्यूअर, यही शरबत जो मैंने आपको बताया है, यही सौंफ का सफूफ, यही सौंफ का पानी, अगर आप सौंफ का पानी आधा कप सुबह दोपहर शाम पीते हैं तो 1 दिन में ये खट्टी डकारें ठीक हो जाएंगी। व्यूअर, जिसने मैदे को ठीक पाया उसने समझ लें सारी ज़िंदगी को ठीक पाया। आपके मैदे में जूसेस बनते हैं, जूसेस के दौरानिया रेड सेल वाइट सेल लिवर सक करता है, और लिवर की इसलाह होगी तो व्यूअर आपको पता होना चाहिए कि लिवर से खून साफ करने के लिए फेफड़ों तक जाता है, जहां जाके उसे ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड फ्रेश होके फिर आपके हार्ट की तरफ जाता है। काइंडली अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। व्यूअर, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं कुदरती बनी हुई हैं, इनमें कोई चीज़ नाखालस नहीं, टोटल खालस होती हैं। जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, सौंफ को 2 नंबर आप क्या करेंगे, सौंफ तो सौंफ है, इसलिए कि ये कुदरत ने बनाई हुई है। आपने देखा कि मैंने आपको कुछ बताया और समझ आ गई होगी। इसी तरह फैट ग्लैंड वाले और थायराइड वाले लोग, अगर आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते हैं तो आप 1 माह के बाद आप उसी ग्लैंड को देखें छू के, वो तकरीबन 50% रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ आप बच्चों के टॉन्सिल्स ठीक कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको खामखा अपने आप को उलझाने की। सौंफ का शरबत जैसे मैंने बता दिया आपको, आप बना के महफूज कर लें। बेशक आप 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास माल्टे का जूस ले लें या मौसमी का, उसमें 1 गिलास सौंफ का पानी डाल दें, अब तीनों को जोश दें, जब शरबत बन जाए तो महफूज कर लें। ये आपके मैदे और जिगर की खूबसूरत इस्लाह करता है, बच्चों का रंग सुर्ख बनाएगा, सफ़ेद करेगा, सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, डार्क सर्कल जो आंखों के गिर्द हल्के बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बच्चियों को बेशुमार प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम, मेरा ख्याल है पेरेंट्स, मैं समझता हूँ देखते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है। तो आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है हर मदर से कि अपने बच्चों को प्लीज़ देखें, प्लीज़ देखें, चूँकि आपका फ़र्ज़ है और उनका हक है आप पे। आप इन्हें देखें और इन्हें बीमारियों से बचाएं। बीमारियों से निजात दिलाने के लिए नेचुरल के नज़दीक हो। नेचर ऐसी चीज़ है, उसमें जो चीज़ पैदा होती है वो नेचुरल है। आप अगर वो यूज़ करते हैं तो बेशुमार बीमारियों से बच जाएंगे। जी व्यूअर, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको फ़ौरन बना के रखें। घर में छोटे छोटे बच्चे जो आपके हैं, अगर किसी को स्टूल पास करते वक्त थोड़ा सा भी ब्लड आता है तो इसका मतलब है कि उसकी बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन है। तो आप काइंडली 1 गिलास
सौंफ का अरक, उसके अंदर आप 1 चम्मच टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून पुदीना पिसा हुआ कर लें, या अगर पत्ते डालने चाहें तो 20 से 15 पत्ते डाल लें। इसको दोबारा जोश दीजिएगा। जब ये गाढ़े शरबत की तरह हो जाए चीनी मिलाने के बाद, तो इसे मलमल के कपड़े में पुन के महफूज रखें। बच्चों को ये लाजमन दें ताकि वो इस बीमारी में मुब्तला ही ना हो, और उनको बचा के रखें। मारने से बेहतर है बचा लेना। बीमारियों में जाके अगर आप कभी किसी से लड़ते हैं, कभी किसी से झगड़ते हैं, और मकसद तो ये होता है कि बच्चे की वजह से आप परेशान हैं, तो आप क्यों एक दूसरे को मारने को चले हैं? बेहतर है कि इसको बचा लें। और बचाने के लिए क्या है, घर पंसार की तरफ तवज्जो दें। आपके घर में हर चीज़ मौजूद है, क्यों आप इधर उधर जाते हैं? बच्चे को खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये जितना प्रोग्राम आप देख रहे हैं सिर्फ आपके लिए है, आपकी इस्लाह के लिए है, और काइंडली इसको अपनाएं। छोटी सी बात को देखें, फ़ौरन ट्रीट करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मसलन अगर आप पुदीने की चटनी 1 चम्मच लेते हैं, 3 चम्मच भी खा लेना, कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह से बीमारियों से निजात के लिए आपका घर पंसार जो है, घर में पंसार, ये सारा आपके काम के लिए है। तो व्यूअर, इसके साथ ही हकीम शाहबाज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।